I'm Manoj Kumar Sharma. Since today's topic is chemical bonding and molecular structure, and today's subtopic is bond parameters. Since always remember that covalent bond is characterized by certain parameters, and these parameters are called bond parameters. And these bond parameters are bond length, bond angle, bond energy or bond enthalpy, and then bond order. So students, these are the different bond parameters which we will discuss one by one. So let's take the first bond parameter, that is bond length beta. Students, these are the two covalently bonded atoms, A and B. Now beta, the radii of this A atom is Ra and radii of this B atom is Rb. And sum of the radii of these two covalently bonded atom is equal to Ra plus Rb, and that is the distance between the centers of the nuclei of these two covalently bonded atoms beta, and that is nothing but that is the bond length. So we can say bond length is the average distance between the center of the nuclei of the two bonded atom, that is nothing but that is a bond length. And students, the units जो हैं आपके bond length के वो हैं angstrom units या फिर picometer units. So units of the bond length are angstrom and picometer beta. 1 angstrom that you know, that is equal to 10 to the minus 10 meter, and 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter. And students, in an ionic compound जो आपके बॉन्ड लेंथ रहेगी बेटा, दैट विल बी द सम ऑफ देयर आयनिक रेडियाई, क्योंकि आपके बेटा आयनिक कंपाउंड में क्या रहते हैं, केटाइन एंड अनाइन रहते हैं. सो केटाइन का जो रेडियाई है और अनाइन का भी कुछ रेडियाई रहेगा बेटा, तो सम ऑफ द रेडियाई ऑफ केटाइन एंड अनाइन दैट इज नथिंग बट दैट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ द आयनिक कंपाउंड. एंड इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या रहेगा बेटा, इट इज द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम जो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन का रेडियाई प्लस क्लोरीन का रेडियाई जो है बेटा, दैट इज द रेडियाई ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, दैट इज HCl. लेट्स से दिस इज A atom is H atom and this is suppose Cl atom. So बेटा हाइड्रोजन का रेडियाई प्लस क्लोरीन का रेडियाई, दैट विल बी द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एंड chlorine beta, that is equal to the covalent radii of the covalent compound. Yeah, you can say that is the radii of the covalent compound. And beta bond length जो है that can be measured by the different methods, that is spectroscopic method and X-ray diffraction technique and diffraction techniques. These are the different methods by which we can measure bond length. Now students, factors affecting the bond length. There are the different factors which affect the bond length, that is the size of the atom, multiplicity of the bonds, effect of hybridization, and then polar nature of the bond. So beta, let's consider the first case, that is size of the atom. अब students, since the bond length जो है आपकी डिपेंड करती है radii of the atom के ऊपर, तो means large, और जो आपका size जो that is measured in terms of radii बेटा, so we can say large the size of the atom, more is the bond length. So bond length beta that increases with increase in the size of the atom. यहां जैसे एग्जांपल दे रखा है बेटा हैलो एसिड्स का, you know बेटा HI is having your largest bond length, then HBr, then HCl, then HF. क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज जो है बेटा सबसे बड़ा है, then your bromine, then your chlorine, और सबसे छोटा है आपका फ्लोरीन का साइज. So बेटा the bond length जो है that is going to decrease in this order. Other example बेटा, now कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम बेटा. नाउ कार्बन का साइज यहाँ सबसे छोटा है, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम का साइज यहाँ सबसे बड़ा है एटम का. तो बेटा जो आपका जर्मेनियम बॉन्ड लेंथ रहेगी दैट विल बी योर लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर सिलिकॉन, एंड देन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है दैट विल बी योर स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज. देन बेटा सेकंड फैक्टर दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, with the multiplicity of the bonds, bond length decreases. Bond length क्या करती है बेटा, decrease करती है with the multiplicity of the bond. और ये multiplicity होती क्या है बेटा bonds की, means जैसे suppose कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 2 हो गए, फिर 3 हो गए, you know बेटा, this increase in the number of bonds between the two atoms
दैट इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे दो एटम्स के बीच में बेटा, मींस विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स आपकी बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, दैट विल डिक्रीज। देन कम्स योर इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Now since we know s orbital is smaller in size, now if this s orbital is smaller in size, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा कैरेक्टर s कैरेक्टर रहेगा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही छोटा रहेगा। Now if the hybrid orbital is smaller, smaller is the bond length. Now ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है बेटा, ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। वैसे एक्चुअली देयर आर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स s, p, d and f. अगर मैं s और p की बात करूं बेटा, तो ये क्या करेंगे, these orbitals will intermix with each other to give you the new orbitals having the same size and energy, and these orbitals are said to be your hybrid orbital. Is that clear? और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा s कैरेक्टर रहेगा, देख ले, उतना ही छोटा साइज रहेगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का। क्यों? क्योंकि आपका s ऑर्बिटल जो दैट इज स्मॉलर इन साइज। सो इफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्मॉलर बेटा, स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस कार्बन इज sp3 hybridized. Now since here s orbital is a 1 plus 3 orbitals of p, so total orbitals कितने हो गए बेटा, 4. So 1 is a s orbital, तो s कैरेक्टर कितना रहेगा बेटा, s character will be equal to your 1/4 into 100, that is equal to 25%. So here it is a 1/3, 1 is a s orbital and total are 3 orbitals बेटा, तो 1/3 into 100. सो यहाँ s कैरेक्टर परसेंटेज क्या रहेगी, 33.3% बेटा, एंड यहाँ कितना रहेगा, 1/2 into 100 बेटा, दैट इज इक्वल टू 50%। तो s कैरेक्टर इज मैक्सिमम इन दिस केस। अगर s कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा है बेटा, तो s ऑर्बिटल बीइंग स्मॉल इन साइज, तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहेगा, छोटा रहेगा, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी बेटा। सो वी कैन से स्मॉलर द s कैरेक्टर बेटा, more is the bond length. Percentage of s character is maximum in this case. s character बेटा जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। सो बेटा इट मींस सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपकी किसकी होगी, sp3, then sp2 hybridized carbon, and then smallest will be of your sp hybridized carbon. Hope students this is clear. Since next electronegativity and bonding. Okay students, अगर electronegativity बेटा of the central atom, if it decreases, then what will happen to the bond angle beta, it will also decrease. Means अगर हम यहाँ कह सकते हैं कि बेटा with decreasing electronegativity of the central atom, bond angle decreases. For example, water is there, H2S is there, H2SC is there, and then H2TE is there. So here the electronegativity is going to decrease when we are going from oxygen to tellurium beta. Now the bond angle in case of water is 104.5 degrees beta, whereas H2S में आपका 92.2 degrees है, H2SC में 91.2 degrees है, और आपका H2TE में आपका कितना है बेटा, 89.5 डिग्रीज है। सो बेटा व्हाट इज हैपनिंग हियर, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल भी कम होता जा रहा है। सेम सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस जब आपका सेंट्रल एटम सेम है, तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज सेम, एंड पेरिफेरल एटम्स व्हेन दे आर गोइंग टू चेंज बेटा, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द peripheral atom is going to change. So let's see what will happen when there will be the change in electronegativity of the peripheral atom. Okay students, in case the central atom remains same, जब आपका central atom क्या है, आपका same है, और bond angle क्या करेगा बेटा, that will increase with the decrease in electronegativity. जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, आपका बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज करता जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल बेटा PCl3 इज देयर, PbR3 इज देयर, Pi3 इज देयर। अगर हम तीनों को कंसीडर करें, यहाँ सेंट्रल एटम यहाँ तीनों में क्या है, सेम है, फॉस्फोरस, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ किसकी है, पेरिफेरल एटम की, क्लोरीन की है, फिर उससे कम बेटा ब्रोमीन की है, और उसके सबसे कम आपकी आयोडीन। तो अगर हम इनके बॉन्ड एंगल्स लिखे बेटा, तो हम पाएंगे कि आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, सबसे ज्यादा Pi3 का होगा, और सबसे कम आपका क्या होगा बेटा, PCl3 का होगा। मींस bond angle increases with decrease in electronegativity of the surrounding atoms. Bond angle increase करते हैं बेटा आपके कैसे, with decrease in electronegativity of the surrounding atom, that is a peripheral atom. So बेटा maximum bond angle जो होगा आपका किसका होगा यहाँ, Pi3 का। So let's see how bond angle here, PCl3 के केस में कितना है बेटा, 100 डिग्रीज, PbR3 के केस में कितना है बेटा आपका 101.5 डिग्रीज, और Pi3 के केस में कितना है 102 degrees. Similarly here, arsenic central atom is here same beta. So here chlorine, bromine, then iodine. तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो बेटा बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा रहेगा, आर्सेनिक
आयोडाइड का बेटा, दैट इज 101 डिग्रीज, वेरएज सबसे कम किसका है 98.4 डिग्रीज। क्यों? क्लोरीन इज more electronegative. Let's take this example, that is of PCl3. The bond angle here is 100 degrees बेटा। यहाँ मैं Pi3 ले लेता हूँ। Now let me tell you that how this bond angle change with the change in the peripheral atom. So बेटा यहाँ क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है that is greater than your iodine. Now if chlorine is more electronegative, then ये जो आपके bond pair of the electrons है ना बेटा, ये क्या होंगे? दे विल बी मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स दिस क्लोरीन। लेट्स से इसका बॉन्ड पेयर यहां है और इसका बॉन्ड पेयर यहां है, लेकिन बेटा एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, जो आपके आयोडीन और पी और आई के बीच में जो ये आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहां है? दैट इज मोर क्लोज टू द दिस वन। सो ये वाला बॉन्ड पेयर आपका फॉस्फोरस के ज्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इट विल नॉट अट्रैक्ट दिस बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर क्लोरीन। सो बेटा, और ये वाला जो है दिस इज ओवर हियर। नाउ इफ यू सी दीज टू बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दे आर मोर क्लोज टू ईच अदर, दैट्स व्हाई रिपल्सिव फोर्सेस विल बी मोर ओवर हियर। आपके ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये क्या हैं? इन दिस केस दैट इज मोर क्लोज टू ईच अदर, जबकि PCl3 में क्या है? दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल हियर इज ग्रेटर। सो बेटा बॉन्ड एंगल ऑफ Pi3 is greater as compared to that of your PCl3. Hope this is clear. So that is here PCl3 beta 100 degree, whereas Pi3 is 102 degrees beta. So that I have discussed कि why this Pi3 is having more bond angle as compared to that of your PCl3 beta. ठीक है? So that will depend upon the electronegativity of the peripheral atom. Now students, next is bond energy or bond enthalpy. Okay students, जब भी कोई bond बनता है between the atoms, you know what happens? Energy is released. इसका मतलब क्या है? Molecules formed as a result of combination of atoms is more stable as compared to that of your atoms. क्यों? क्योंकि some amount of energy is released, तो molecule is having less energy, it means as compared to that of the individual atoms. अब बेटा इसका मतलब molecules के पास energy क्या है बेटा? That is having less energy. Is that clear? As compared to that of your individual atoms. सो बेटा अब मान लिया कोई भी बॉन्ड बन रहा है, इज इट क्लियर? और दैट बॉन्ड इज फॉर्म्ड मींस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स। इसका मतलब क्या हो बेटा? उतनी ही एनर्जी चाहिए जितनी उसने रिलीज की थी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। सिंस जैसा कि आप जानते हैं, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, and this amount of energy released, that is equal to the bond energy or bond enthalpy. So beta, we can say bond energy is the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particle type so as to give gaseous atom. That is called your bond dissociation energy or simply bond energy. Up now, what is the difference between the bond dissociation energy and bond energy? That will discuss. Always remember बेटा, जितनी ज्यादा bond energy होगी, bond strength उतनी ही ज्यादा होगी, means उतना ही ज्यादा strong आपका bond होगा, means strength of the bond जो है that is directly proportional to the bond energy, and bond energy is usually expressed in kilojoule per mole. इसकी जो units है बेटा that is kilojoule per mole. Now beta, bond dissociation energy of hydrogen, oxygen and nitrogen. You know beta, all these molecules are diatomic molecules. Now here, bond dissociation enthalpy of hydrogen, that is of 535.8 kilojoule per mole. So यहाँ क्या हो रहा है बेटा? 1 mole of bonds of this hydrogen is broken to give the gaseous hydrogen atom. तो जितनी एनर्जी चाहिए इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बेटा, that is of bond dissociation energy. That is equal to your 435.8 kilojoule per mole. And since there is only one type of bond is there, that is hydrogen के बीच में, you know, this diatomic molecule. So beta, in case of diatomic molecule, it is said to be bond dissociation energy. Now, oxygen, when 1 mole of the bonds of oxygen is going to break to give gaseous atoms,
कितनी एनर्जी चाहिए इनको तोड़ने के लिए बेटा, दैट इज अगेन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 498 किलोजूल पर मोल. Similarly, in case of nitrogen beta, this bond dissociation energy is 946 kilojoule per mole. So it means beta जो सबसे ज्यादा bond strength वो किसकी है? नाइट्रोजन की है, उससे कम ऑक्सीजन एंड देन उससे कम हाइड्रोजन, because bond strength is directly proportional to the bond energy. More is the bond energy, more is the bond strength. So here नाइट्रोजन के बीच में जो भी आपके बॉन्ड है बेटा, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? दैट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड देन योर सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ है आपकी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स की. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी. इससे फर्स्ट फैक्टर दैट इज द साइज ऑफ द एटम. ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ एंड लेस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी and less is the bond strength. Always remember beta, bond energy is inversely proportional to the bond length. More is the bond length, small is the bond energy. Smaller the bond length, more is the bond energy. So if bond energy depends upon the bond length, it means that is going to depend upon the size of the atom. So more is the size of the atom, more is the bond length, smaller is the bond dissociation energy or bond dissociation enthalpy, and less is the bond strength. So bond energy plays very important role beta in determining the bond strength. More is the bond energy, more is the bond strength. More is the bond energy, smaller is the bond length. And bond dissociation energy, that is inversely proportional to bond length. Means more is the bond length beta, smaller is the bond dissociation energy. Smaller is the bond length, more is the bond dissociation energy. So second factor, अगर आपका जो bond है बेटा, if it is getting formed between the two similar atoms. Next factor, now let's see how it depends upon the number of lone pair of the electrons. You know beta, greater the number of lone pair of the electrons present on the bonded atoms, greater is the repulsion. क्योंकि lone pair repulsion जो है that is more beta. तो greater the number of lone pair of the electrons present on the bonded atoms, greater is the repulsion. उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी? repulsions होंगी between the atoms. अगर रिपल्शन ज्यादा होंगी बेटा तो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी. ऑलवेज रिमेंबर बेटा, रिपल्शंस लीड टू इंक्रीज इन एनर्जी, व्हेयरएज अट्रैक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी. मींस अट्रैक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ऑफ द सिस्टम. लेट्स से जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जब आपकी एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगी, इट विल लूज एनर्जी, and that whatever amount of energy it is going to lose during the formation of bonds between the atoms बेटा, उतनी ही एनर्जी उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए चाहिए, that is of bond dissociation energy. So बेटा, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या रहेगी एटम्स के बीच में, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन रहेगी एटम्स के बीच में उतनी ही ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी. लेकिन जितनी ज्यादा रिपल्शंस रहेंगे उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी. सो बेटा, ग्रेटर इज द रिपल्शंस बिटवीन द एटम्स, लेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बेटा, बेटा, दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी होगा. सो बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगी उस बॉन्ड की? पोलैरिटी रहेगी. मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर इज द पोलैरिटी. सो मोर द पोलैरिटी, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ. मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर इज द बॉन्ड एनर्जी. सो बेटा, हियर HF इज देयर. फ्लोरीन की जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, दैट इज मैक्सिमम, that is 4, and Cl की 3.5, 2.8 and 2.5 के अराउंड बेटा आयोडीन की रहेगी. तो बेटा, what is happening? Electronegativity of the fluorine, chlorine and bromine and iodine, that is going to decrease from fluorine to iodine. So बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है इनका क्या होता जा रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है. सो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनका HF से लेकर HI तक जो है आपका अगर ये डिक्रीज कर रहा है, then what is happening? जो बॉन्ड पोलैरिटी है बेटा, that is also going to decrease. बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज कर रही है तो क्या हो रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. तो बॉन्ड एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी रहेगी? HF की. देन योर HCl, देन योर HBr, देन योर HI. सो दिस इज हाउ द bond energy depends upon the electronegativity difference. More the electronegative difference, more is the bond polarity, and hence more is the bond strength. Hope students this was clear. Next is average bond enthalpy. In case of
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या रहता है बेटा, एक से ज्यादा बॉन्ड्स रहते हैं, जो आपके एक ही तरह के रहते हैं, तो उसमें हम जो बॉन्ड एंथैल्पी लेते हैं बेटा, वो क्या रहती है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी रहती है। और ये जो एवरेज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, और सिंपली एज द बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल बेटा, लेट्स टेक द केस ऑफ वाटर. नाउ वाटर इज हियर, लेट्स से वाटर इज हैविंग योर 2 OH बॉन्ड्स बेटा. यहां क्या हुआ, एक H बॉन्ड, OH बॉन्ड टूट गया और उसने क्या किया, H और OH दे दिए. नाउ दिस इज फर्स्ट bond dissociation enthalpy of water, that is of 502 kilojoule per mole beta. Let's say water is just like this is water beta here. Let's say जब इस बॉन्ड को तोड़ा, इज इट क्लियर, तो बचा क्या, इसने क्या दिया बेटा, H और OH दे दिया. और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी बेटा, that is of bond dissociation enthalpy, or the rather first bond dissociation enthalpy, and that is of 502 kilojoule per mole. And अब जब ये बॉन्ड टूट गया तो हमारे पास क्या रह गया बेटा, that is going to give you this H and plus OH, this H and OH. Now OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए to give this gaseous O atom and that of your H atom, gaseous H atom बेटा, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, 427 किलोजूल पर मोल. और यहां अगर आप देखें तो although they are having your same type of bonds between OH, 2 OH bonds are there, but bond dissociation enthalpies are different. तो बेटा ये डिफरेंस कहां से आया, क्योंकि जब हमने इस OH बॉन्ड को तोड़ा तो यू नो there is some change in chemical environment is there. जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, एक OH बॉन्ड को तोड़ा, तो केमिकल एनवायरनमेंट जो है आपका बेटा इस बॉन्ड का, that is going to change, and due to this change there is a change in bond dissociation enthalpy. So beta here the first bond dissociation enthalpy is this much, 502 kilojoule per mole, और second bond dissociation enthalpy is 427 kilojoule per mole. सो अब हमने इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू द मीन और एवरेज ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी बेटा. सो लेट्स सी, देन एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज द एवरेज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द 2 बॉन्ड्स बेटा, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी थी बेटा, 502, और सेकंड थी 427 किलोजूल पर मोल. सो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या रह जाएगी बेटा, दैट विल बी योर 502 प्लस 427 अपॉन 2, तो दैट इज इक्वल टू योर 464.5 किलोजूल पर मोल. सो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ही आपकी क्या कहलाती है, आपकी बेटा बॉन्ड एंथैल्पी. सो दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी बेटा. But in case of diatomic molecules, bond dissociation enthalpy is equal to the bond enthalpy. But in case of polyatomic molecules, bond dissociation enthalpy is different from bond enthalpy beta. Now next is of bond enthalpy. अभी बात की मैंने कि bond enthalpy, that is the average enthalpy which is required to break bonds of a given type in 1 mole of gaseous molecules. जैसे वाटर का लिए हमने एग्जांपल लिया था, 1 मोल गैसेस मॉलिक्यूल्स लिए हमने वाटर के, और उन्होंने क्या दिए, गैसेस एटम्स दिए बेटा. पहली फर्स्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी थी, फिर सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थी, उनका जो एवरेज था दैट इज व्हाट, बॉन्ड एंथैल्पी. लेकिन यही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल बेटा, यही क्या कहलाती है आपकी, बॉन्ड एंथैल्पी. Bond dissociation enthalpy in case of diatomic molecule will be equal to bond enthalpy. Hope students this is clear. Now next is bond order.
बेटा बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं सिंपली बात कहूं कि बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स, कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, दैट इज अ बॉन्ड ऑर्डर. सो बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ वन बॉन्ड इज देयर, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1. ऑक्सीजन के बीच में 2 हैं बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2. नाइट्रोजन के बीच में 3 है, तो सो बॉन्ड ऑर्डर इज 3. नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. बेटा जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है बेटा, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था बेटा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होती हैं. ऐसे स्पेसिस विच आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल now fluorine is here, F2 and O2 negative. फ्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर 9, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ऑक्सीजन में कितने हैं आपके? एटॉमिक नंबर इज 8, 8 2 16 प्लस 2 नेगेटिव है यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और तो 18. सो F2 and O2 2 नेगेटिव बेटा दे आर हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स बोथ. दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. और बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है बेटा, फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है, O2 2 नेगेटिव में भी आपका क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो द बॉन्ड ऑर्डर इज योर 1. सिमिलरली नाइट्रोजन, आपको नाइट्रोजन के बीच में पता है कि ट्रिपल बॉन्ड इज देयर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं शुरू से करता आ रहा हूं इस चैप्टर में बेटा, ठीक है, तभी मैं हर जगह लुईस डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम आपको बना रहा हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं. सो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी बेटा. नाइट्रोजन का जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड इज देयर बिटवीन द टू एटम्स बेटा, ठीक है. सो नाइट्रोजन में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन में कितने बेटा, 6 प्लस 8, ऑक्सीजन में कितने हो गए 14, तो नाइट्रोजन में बेटा 7 प्लस 8 कितना हो गया 15, एक माइनस कर दें यहाँ क्योंकि पॉजिटिव साइन इज देयर 14. सो दीज ऑल आर हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन्स. सो बॉन्ड ऑर्डर जब आपका इसका नाइट्रोजन का बेटा 3 है, तो बाकियों का भी कितना होगा, 3 होगा. So we can say isoelectronic spaces have the same bond order. Always remember beta, bond order is inversely proportional to the bond length and directly proportional to the bond enthalpy beta. Bond order is directly proportional to the bond enthalpy. More is the bond order, more is the bond enthalpy. More is the bond order, smaller is the bond length. Smaller is the bond length beta, more is the bond enthalpy. So they are related to each other. So with this, thank you beta. Hope everything is clear whatever we have discussed today. So students, subscribe my channel so that I can upload more and more videos in future. So subscribe MK Classes. Thank you. Have a nice day.